as we discussed yesterday, how to calculate density of crystal lattice by calculating the density of unit cells. And the formula for density of unit cell is Z, that is the number of atoms present in a particular type of unit cell, multiplied with its molar mass, divided by Avogadro's number and edge length cube. Okay. So by using this formula, if we need to solve this kind of question is, niobium crystallizes in a body-centered cubic lattice. If the density is 8.55 gram per centimeter cube, calculate atomic radius of niobium using its atomic mass 93 U. Atomic mass, that is the molar mass of niobium given to you. U में है, इसको ग्राम में करोगे तो molar mass हो जाएगा बेटा. This is the atomic mass in unified mass. Okay. Density is given in gram per centimeter cube. Now, what you need to do here, आपको atomic radius निकालना है. Atomic radius means R you need to find. अब R आपके पास directly density वाले formula में नहीं है. What we have formula, density is equal to Z M over N A cube. So, can anyone tell what is to be calculated here? Yes, unmute your. A. Yes. A, ma'am. Yes, Jasmine. A is to be calculated. A cube is to be calculated, and you know that relation we have derived also for different types of unit cells, how A is related to atomic radius directly. Okay, so firstly we'll find out A cube here. A cube is equal to density multiplied by, Z M divided by N A and density. Okay, this will be our formula. And here in this formula, what you need to put the value of Z? Yes, who will tell? Value of 1. 2. 2. 2. Why it is 2? Because it is a body-centered cubic Body-centered. lattice. Okay, multiplied by molar mass 93 divided by Avogadro's number 6.022 10 raised to the power 23, and density is 8.55. Okay, so after calculating this, your edge length will become, if you solve this entire value, edge length is 36.12. Then raised to the power minus 24. ठीक है, ये आपकी आती है यहाँ पे एज लेंथ क्यूबिक सेंटीमीटर में. Now we can anyone tell how A and R for BCC unit cell are related to each other? A equals to 4 by root 3 R. Yeah, 4 by root 3 R. Then R will be equal to 3 over और रूट 3 over 4A. ओके, तो A आपको पहले यहाँ फाइंड करना है. तो अब ये थोड़ा सा मैथ्स आपको यहाँ पर मतलब सिंपली A you need to find, then it will be cube root of 36.12, that will be equal to 3.306. जब आप इसका क्यूब रूट लोगे then it becomes 3.306 multiplied by 10 raised to the power minus 8 centimeter. This is the value of edge length. Okay. Now we need to find R. R is equal to
√3/4. Just √3a/4. This will be the formula of ये relationship. आपको बेटा टेबल से फाइंड करने हैं, और even you can memorize these three relationships only. A is equal to 2r for simple cubic lattice. A is equal to 2√2r. 2r की जगह 2 multiplied by √2 कर दो, और साथ में r, तो वो है आपका FCC lattice. And for BCC lattice it is 4r/√3. ठीक है, ए की मैं फॉर्मूले बता रही हूँ, तो ए और आर के रिलेशन से आपको यहाँ पे आर फाइंड करना है. तो इफ यू फाइंड इट द वैल्यू, आप ए की सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है 3.306 10⁻⁻8. द वैल्यू आंसर फॉर योर आर विल कम आउट टू बी 0.14 1.431 multiplied by 10⁻⁻⁻10. ये आंसर यहाँ मीटर में है. तो वो आप जिस अभी इस फॉर्मूला में अगर हमने सेंटीमीटर वाली वैल्यू पुट की है, तो आपका आंसर यहाँ सेंटीमीटर में आ जाएगा. दैट डजंट मैटर, जो भी यूनिट आती है आपके, आपने उसी में आंसर आप छोड़ सकते हो. नो नीड टू पुट दी अनदर यूनिट. ओके, मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. बुक में आंसर कन्वर्ट किया हुआ है SI यूनिट में, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप सेंटीमीटर में पुट कर रहे हो एक ही वैल्यू, तो यू कैन गेट आंसर इन सेंटीमीटर इटसेल्फ. ओके, एनी डाउट इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस? मतलब आपको ए और आर के रिलेशनशिप्स याद रखने हैं, और मतलब नथिंग यू रिक्वायर फॉर दैट, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर्स. ओके, so next question. Any doubt anybody is having? And for next question you will be telling all these steps. Aluminium crystallizes in a cubic closed packed structure. Its metallic radius is 125 picometer. What is the length of the side of the unit cell? Let me ask someone. Samvit Duggal, unmute yourself. Samvit beta. Yes, ma'am. Have you revised the topic, density formula, whatever we have discussed yesterday? और एक मैम 2 मिनट मैम. हाँ, 2 मिनट. not yet. मैम घर वाले बुला रहे, 2 मिनट. What? घर वाले बीच में से नहीं बुलाते, क्लास में से. Yes, someone else. आप लोग बेटा अगर 12th में भी यही हाल रहा ना, अभी देखो 2 बच्चे लीव कर गए मीटिंग की, इसीलिए कि हमसे ना पूछ ले. Can I tell, ma'am? Yes, गुरवीर. Yes, ma'am. हाँ जी बताइए. Ma'am, radius is given. First, we will convert it into meter or centimeter, and then we will use the formula for cubic closed packing. That is A equals to 2R, and we will find A. क्यूबिक क्लोज पैकिंग है बेटा, ये सिंपल क्यूबिक नहीं है. इट विल नॉट बी लाइक A is equal to 2R is for simple cubic स्ट्रक्चर. क्यूबिक क्लोज पैक्ड 3 डायमेंशनल में हमने CCP लैटिस जो किया था. CCP लैटिस इज इक्विवेलेंट टू FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले तो आपको यही चीज मतलब क्लियर करनी आनी चाहिए कि व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. और सॉरी, स्लाइड इज चेंज्ड. May I answer, ma'am? Yes. मैम क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए Z4 हो जाएगा.
एंड आर दिया हुआ है, तो आर और ए का रिलेशन 2√2r से हम ए निकाल लेंगे। हाँ जी, ए ही निकालना है आपको यहाँ पर। ए इज इक्वल टू 2√2। पार्ट हो जाएगा अपने से, फिर ए से हम ए क्यूब, ये ए क्यूब वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हाँ जी, और हाउ फिर यूनिट आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। आपको देखो बेटा ये चीज याद रखनी है कि जो वॉल्यूम एक यूनिट सेल का होता है उसमें उतने ही एटम्स आते हैं जो उसका जेड का नंबर होता है, ठीक है। तो फॉर अ पर्टिकुलर सीसीपी यूनिट सेल्स देयर आर 4 atoms present in that particular volume, okay। and here in this case, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन था आई थिंक क्यूबिक क्लोज, हाँ ठीक है। तो उस वॉल्यूम के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने एटम्स आएंगे, दैट यू नीड टू फाइंड आउट, ओके। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए इज इक्वल टू 2√2r okay, and by using this formula what we need to find a, okay। so a will be equal to here 2 multiplied by √2 की वैल्यू 1.414 you need to put, multiplied by r is 125। अगर आप पिकोमीटर में यहाँ पर यूज करो तो पिकोमीटर में ही आपके पास एज लेंथ आ जाएगी। तो पिकोमीटर को आप फर्दर फिर एज लेंथ को जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो जिस यूनिट में आपको वॉल्यूम चाहिए उस यूनिट में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो हियर योर आंसर विल बी, if we find out in this is 353.5 picometer, okay। so this is your edge length। now if you convert it into, because आपको सेकेंड पार्ट जो है उसमें सेंटीमीटर क्यूब यूज करना यूनिट, तो here you can find, just wait a minute, 353.5 multiplied by 10 raised to the power minus 10 centimeter now you need to find how many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminium। एल्यूमिनियम के इतने वॉल्यूम में कितनी यूनिट सेल्स होंगी, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम है बेटा, उस एक यूनिट सेल का वॉल्यूम जो होगा वो आपको पहले फाइंड करना है। ए क्यूब दैट इज इक्वल टू, अभी ये कैपिटल हो रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज 5 multiplied by 10 raised to the power minus 10। को पूरे को क्यूब करके जो आप वैल्यू निकालोगे दैट विल बी and this comes out to be इसकी जो वैल्यू है दैट इज 4.42 10 raised to the power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का ये वॉल्यूम है। मींस अगर आपको स्टेटमेंट फ्रेम करनी है, सेकेंड पार्ट बेटा यूनिटरी मेथड से डिराइव करना है, तो यू कैन राइट 4.2 multiplied by 10 raised to minus 23 centimeter cube of aluminium has number of unit cell equals to 1। so what will be the number of unit cell in just 1 centimeter cube? so you can frame statement for part 2। ये आपका पार्ट 1 तो बेटा 353.5 तक खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए हमें पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, दैट इज ए क्यूब। नाउ वी नीड टू फ्रेम स्टेटमेंट, नंबर ऑफ unit cell in
4.42 multiplied by 10 raised to the power minus 23 centimeter cube is equal to how many unit cells will be there in this volume? Can anyone tell? ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, तो अगर हमको स्टेटमेंट फ्रेम करनी है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन गिवन वॉल्यूम, देन obviously if one unit cell has volume equals to this, the number of unit cells in this volume will be equal to 1. and हमें find क्या करना है? number of unit cells in 1 cubic centimeter. Then what it would be? 1 divided by 4.42 multiplied by 10 raised to the power minus 23. ठीक है, तो this comes out to be आंसर जो आपका है यहाँ पे, this is 2.36 10 raised to the power 22. तो these much unit cells, आपको यहाँ पर अब unit cells लिख सकते हो, अदरवाइज नंबर है ये तो कोई यूनिट नहीं होगी इसके लिए. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सेकंड पार्ट थोड़ा सा लाइक सिंपल मैथ्स ही है, यूनिटरी मेथड लगाना, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग अगर होगी प्रॉपर्ली देन ओनली यू कैन डू. और एक फर्स्ट पार्ट वन कैसे आया? वन बेटा इसलिए आया कि देखो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हमने फाइंड किया 4.42 10 raised to minus 23. ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है. आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी यूनिट सेल्स विल बी देयर इन 1 cubic centimeter ऑफ एल्यूमिनियम. और एल्यूमिनियम की एक यूनिट सेल का वॉल्यूम 4.42 10 raised to minus 23 क्यूबिक सेंटीमीटर है. मींस अगर हम इतना वॉल्यूम कंसीडर करते हैं एल्यूमिनियम का 4.42 10 raised to minus 23, तो उसमें कितने यूनिट सेल्स आ रहे हैं? वो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, ऑब्वियसली उसमें एक ही यूनिट सेल आएगा ना इतने वॉल्यूम में. जस्ट स्टेटमेंट को फ्रेम किया है आपने ए क्यूब की वैल्यू यूज करके. तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें होता है कि कितनी यूनिट सेल्स होंगी गिवन वॉल्यूम में, तो उसके लिए सिंपल है, आपको एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेना है और उतने वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल आएंगे, बट ऑब्वियस वो एक ही होगा क्योंकि आप निकाल ही 1 के लिए रहे हो ना. ए क्यूब इज जस्ट द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल. क्लियर? और स्टिल यस मैम. सीसीपी में 4 नहीं होते यूनिट सेल में? क्या बेटा? सीसीपी में 4 यूनिट सेल नहीं होते. यूनिट सेल के अंदर Z की वैल्यू 4 होती है. हमें अगर इस क्वेश्चन में सेम ये पूछा होता हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 cubic centimeter ऑफ एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे यूनिट सेल इतनी आई थी ना, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था. अभी वो यूनिट सेल्स का नंबर पूछ रहे हैं, पार्टिकल्स का नहीं. यही चीजों में बहुत कंफ्यूजन होती है. देखो यूनिट सेल मींस द एग्जैक्टली सीसीपी यूनिट सेल, 4 एटम से बनी हुई एक यूनिट सेल की बात हो रही है. अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने होते, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं बुक में, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन दिस गिवन सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम, या कुछ मास दे दिया, तो उसके लिए आपको Z से मल्टीप्लाई करना है जो भी वॉल्यूम आएगा. भगतप्रीत, स्टिल हैविंग एनी डाउट और क्लियर? नो मैम, थैंक यू. बेटा देखो ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझना, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं तो Z यूज करना है. अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल देख रहे हैं तो एक जो वॉल्यूम एक यूनिट सेल का है उसी को यूज करके आपको फर्दर गिवन वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल्स आएंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करना. ये चैप्टर में सिर्फ 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं, एक डेंसिटी वाला और 3 ये रिलेशनशिप जो है, मतलब A और R की रिलेशन फॉर सिंपल क्यूबिक, CCP एंड BCC. और एक सबसे पहले ये कंफ्यूजन गुरवीर जो आपको अभी था बेटा, क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP है. ये क्यूबिक क्लोज पैक इज अ 3-dimensional स्ट्रक्चर हैविंग 1 atom at the center of each face. It is just like FCC. तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. अगर आप यहीं पर फॉर्मूला रॉन्ग कर दोगे तो पहले A ही रॉन्ग आ जाएगा, फिर आगे वाला पार्ट भी रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू consider what type of crystal structure is given in the question, और फिर वो फॉर्मूले आपने अप्लाई करने. और कल एक टेबल मैंने आपको बताई थी, वो टेबल में रिलेशनशिप तीनों स्ट्रक्चर्स के लिए है. वो टेबल आपकी नोटबुक में मतलब बना के आपने उसको अच्छे से मेमोराइज करना, देन इट विल बी इजी. अदरवाइज कोई बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं है, पूरी टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं है. अगर आप सिर्फ ये रिलेशन याद कर लेते हो, उसी से बाकी चीजें डिराइव हो जाती है.
Yes, next question. Gold has atomic radius 0.144 nanometer. It crystallizes in FCC unit cell. What is the length of the side of the unit cell? Again, simple, जैसे वो क्वेश्चन किया था, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल मीन्स एज लेंथ, हम उसको कहेंगे एज लेंथ. यू नीड टू फाइंड आउट इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. अभी हमने पहले ही डिराइव किया था, ये वाला फॉर्मूला उठाना है यहाँ से. R इज इक्वल टू 3 by दिस इज फॉर BCC. अभी जो पहले किया 2√2R वाला, दिस फॉर्मूला यू नीड टू अप्लाई हियर. ओके, A 2√2R. अब इसमें वैल्यू आपको R गिवन है 2 multiplied by 1.414 multiplied by 0.144. और एक चीज बेटा आप याद रखो, जिस यूनिट में आपको गिवन है R, आप उसी यूनिट में एज लेंथ दे सकते हो until and unless it is not asked in a specific unit या SI यूनिट मेंशन किया हुआ है. अदरवाइज व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे कन्वर्ट इट एंड जनरली कन्वर्जन्स में मिस्टेक्स कर जाते हैं. वैसे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, मीटर में निकाल तो 10⁻⁻9 और मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, बट स्टिल यू कैन गिव आंसर इन एनी यूनिट whichever is given in the question. Clear? So here answer, I need to find out, just a minute. It's 0. मैम नैनोमीटर सेंटीमीटर में 10⁻⁻7 होगा. हाँ जी 7. मीटर निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर लो, उसका उसमें ना कई बार गड़बड़, मतलब एक कंफ्यूजन रहता है कि सीधा सेंटीमीटर में करना है. तो बेटर है हर चीज को पहले बेसिक यूनिट में करो, मीटर पे पहुंच जाओ, और मीटर को फिर सेंटीमीटर में हम कैसे करते हैं आपको पता ही है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 10⁻⁻9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 10⁻�7. मीटर के कंपैरेटिवली 2 यूनिट कम हो जाते हैं जब आप किसी भी स्मॉलर यूनिट को सेंटीमीटर में, मतलब और स्मॉल जो है, नैनो है, पिको है, व्हाटएवर. तो आंसर इज 0.407 नैनोमीटर. क्लियर? बस ये इतना सा ही क्वेश्चन था और इसमें कुछ नहीं पूछा. फ्यू क्वेश्चंस मोर वी कैन हैव. एक्चुअली एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस थे मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ. एक क्वेश्चन ना कल मैंने होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने होमवर्क में, मतलब वो डेंसिटी बेस्ड ही था. बट निशांत, यू सॉल्व दिस वन. Actually, otherwise I'm going to discuss it today. You have already done, doesn't matter. और एक डिफेक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन संजना आपने सॉल्व किया बेटा. कुछ नंबर में मुझे लगता है मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक डाउनलोडेड फॉर्म में है ना, नेट से मैंने की है लेटेस्ट, उसमें मे बी नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ वेरी कर सकते हैं. बट येस्टरडे दोज क्वेश्चंस आई आस्क्ड यू टू डू ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटी. उसमें कोई डिफेक्ट्स तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, इसलिए मैंने डिफेक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं दिया था. और ये क्वेश्चन भी मैंने अभी नहीं दिया था बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस हियर इन द क्लास. तो आप लोगों ने उस एक क्वेश्चन की जगह कोई और, निशांत एंड संजना, आप दोनों की पीडीएफ्स आई थी मेरे पास, तो दैट वन क्वेश्चन वाज मिसिंग. वो एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें किसी एलिमेंट की डेंसिटी पूछी गई थी, 1.18 number. I don't know whether it is there in older editions or not, but it is there in the new NCERT book. So this question is, a compound forms hexagonal closed packed structure. Okay? What is the total number of voids in 0.5 mole of it? एक compound है जो HCP crystal structure में present है. Total number of voids उसके half mole में निकालने. अब सबसे पहले आपको एक, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट पढ़ के ही पता नहीं बच्चे, ऐसी सिंपल क्वेश्चन में भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में. आपको एक सिंपल रिलेशन याद रखना है बेटा. जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक एलिमेंट, एक किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, उतने सेम नंबर में उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं एंड डबल द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर. तो फर्स्टली यू नीड टू मेंशन टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स में पूछे तो टोटल कितने हो जाएंगे, डबल टेट्राहेड्रल होते हैं और वन टाइम सेम एन जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है. तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में 3n के इक्वल होते हैं. टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स
in a crystal is equal to 3n. अब ये 3n के लिए आपको पहले एक लाइन और लिख लो यहाँ पे कि वेदर आपको ये क्लियर होना है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स आपके पास हैं n, आपने एज्यूम कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स विल ऑलवेज बी 3n। और वो 3n कहाँ से आया आपके पास, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 2n आपके होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्लस n आपके पास होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, दो ही टाइप के वॉइड्स हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स विल बी 3n. Now in this question it is asked that the compound is, you have taken the compound as 0.5 mole. तो सबसे पहले इसमें आपको उस कंपाउंड में, यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं दिया कि कौन सा कंपाउंड है, क्या एलिमेंट, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोल्स तो हमें सीधा मोल कंसेप्ट से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेने। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स in given compound is equal to 0.5 mole, means इसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 10 raised to the power 23। ओके, तो जो ये हाफ मोल के इक्वल वैल्यू आ गई आपके पास, तो दिस विल बी इक्वल टू 3.001 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 23। ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक क्वेश्चन में पूछा है आपको व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, कितने होंगे बेटा? 3.011 into 10 raised to power 23 into 3। यस, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने जस्ट 3 से, जो भी आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू आई है। Total number of voids 3 multiplied by 3.011 10 raised to the power 23। Solve कर लेना इसको 9.033 whatever it comes out to be, and then total number of tetrahedral voids कितने होंगे? हाँ जी बेटा, can anyone? 6.022। 2 into 3 of this number जो आपके 6.0 उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीवी इज फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये, ओवी ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज करते हैं हम, ओ सिंपल ओ एंड टी भी लिख सकते हो। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.011 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 23, ठीक है। तो यहाँ पर आगे वॉइड्स लगाने लगा दो, अदरवाइज यूनिट्स की कोई जरूरत नहीं है नंबर्स के लिए। तो दिस इज हाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व। तो इस चैप्टर में बेटा एक तो बेसिकली डायरेक्ट डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन जो फॉर्मूला है उसमें z निकालने को आ सकता है, उसमें z जब वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि z की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन कल हमने जो एक डिस्कस किया था कि किस टाइप का ये क्रिस्टल होगा, एक होमवर्क में दिया था मैंने आपको क्वेश्चन, कैन एनीवन टेल व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? उसमें z की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 आती है, तो विच लैटिस इट वुड बी? FCC। तो बेटा आपको जब भी क्वेश्चन में पूछा गया, मतलब उसकी डेंसिटी गिवन होगी, एटॉमिक मास में ऑल्सो भी गिवन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में तो हमेशा एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू क्रैम ऑल डिफरेंट एटॉमिक मासेस, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बट सिंपल से होते हैं तो कई बार नहीं भी गिवन होता, जैसे एल्यूमिनियम है, सोडियम है, तो इनके लिए मे नॉट भी गिवन। कॉपर के लिए भी थोड़ा सा याद रखो 63.5 है, सिल्वर 108 है, बट अदरवाइज इन बोर्ड एग्जाम्स इट विल बी गिवन। ओके, बट हम लोग स्कूल में कई बार नहीं भी देते, जो इजी होते हैं उनके लिए नहीं डालते, डिफिकल्ट के लिए तो दे ही देते हैं। तो उस क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, एवरीथिंग विल बी गिवन, जस्ट सिंपल इट विल बी आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस इट इज। तो आपको डेंसिटी फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू नीड टू फाइंड z ओवर देयर,
Z की आपके पास 3 ही पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। अब इस क्वेश्चन में भी ना बच्चे इतनी रॉन्ग कैलकुलेशंस कर देते हैं, पावर्स में Z की वैल्यू निकाल देते हैं। कभी भी Z कितनी हाई पावर में नहीं जाएगा, या इधर 1 होगा, 2 होगा या 4 होगा, क्योंकि ये 3 ही टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अभी आपको सिलेबस में। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड के लिए नहीं पूछा जाएगा। वैसे अगर सपोज कभी कहीं कंपटीशन में या कहीं पर भी पूछते हैं तो उसके लिए Z की वैल्यू 6 होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड जो इस क्वेश्चन में है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक्चुअली निकालने नहीं थे Z की वैल्यू, तो यूज नहीं हुआ वो। बट अदरवाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस में आपको हेक्सागोनल या HCP लैटिस के लिए कोई क्वेश्चन Z यूज करके नहीं आएगा, बिकॉज बुक में उसका Z निकलवाया नहीं हुआ। ठीक है, तो अदरवाइज एवोगैड्रो नंबर की कैलकुलेशन भी आ सकती है डेंसिटी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ना। तो उसमें याद रखो, आपको फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करो, एग्जैक्ट जो भी यूनिट चाहिए वहां पे, क्योंकि आपको एवोगैड्रो नंबर निकालना है। तो अगर डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है तो आपको फिर मास भी किलोग्राम में पुट करना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान दे के आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हो तो आपको एवोगैड्रो नंबर के लिए कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट द एग्जैक्ट एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वली आता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आप अपनी कैलकुलेशंस को सिंपलर कर सकते हो इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग। ठीक है ना, अब पता ही आपको एवोगैड्रो नंबर कभी चेंज नहीं होगा, आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो उसको। तो ऐसे क्वेश्चंस, इसमें डेंसिटी पूछी जा सकती है, एज लेंथ पूछ सकते हैं। तो एज लेंथ के लिए a क्यूब आएगा आपके पास, तो उसको आपने क्यूब रूट लेके a फाइंड करना है। अभी क्यूब रूट अब आपको सॉल्व करने आने चाहिए, बिकॉज कुछ तो ऐसे डायरेक्ट नंबर, होल नंबर्स हैं जो आपको डायरेक्ट आंसर दे देंगे, बट अदरवाइज यू नीड टू फाइंड इट। लॉग टेबल से भी फाइंड हो जाता है, बट उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पार 1/3 लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो आप लॉग लेके, तो उससे इजी हो जाता है क्यूब रूट लेना। बट वो ये है कि उसके बाद में फिर उसका एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा जो भी आंसर आएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू सॉल्व। a क्यूब निकालना आ सकता है, a निकालना आ सकता है, z आ सकता है, डेंसिटी पूछ सकते हैं, मोलर मास पूछ सकते हैं, और एवोगैड्रो नंबर भी पूछ सकते हैं। 5 वेरिएबल्स हैं वहां पे, 5 में से कुछ भी फाइंड करना आ सकता है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो a और r के जो भी हमने सॉल्व किए थे रिलेशनशिप ये वाले, इसके ऊपर बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और these kind of unitary method involved questions may also be there. How many unit cells there, how many atoms are there, it can be asked. In the same question, if it is asked for atoms, then you need to multiply this with 4. जितनी unit cells आई हैं, per unit cell 4 atoms हैं, 4 से multiply कर दोगे, you will be getting number of atoms. So I think now this topic is clear to you all. नेक्स्ट पीरियड से बेटा मैं आज डिफेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सॉलिड स्टेट। डिफेक्ट्स के बेस पे एक क्वेश्चन ये डेंसिटी बेस्ड होता है, डिफेक्ट बेस्ड भी होता है, मतलब 5 या 6 मार्क्स में होते हैं बोर्ड में। ये चैप्टर 5-6 मार्क्स का आता है, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ही होगा चाहे वो, बट डिफेक्ट बेस्ड शुड बी देयर, इज ऑलवेज देयर, नॉट शुड बी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिफेक्ट्स वेरी लाइक प्रॉपरली, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। 3 मेन टाइप के डिफेक्ट्स है आयनिक सॉलिड्स में, तो दोज यू नीड